Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shanwaz Zafar, lecturer, Business Administration, University of Education, Lahore, Jorabad campus. Today we are going to study lecture 18 of organizational behavior, and today's topic is job characteristic model. The job characteristic model is basically a theory that is based on the idea that a task in itself is the key to employee motivation. For example, a boring or a monotonous job is disastrous to an employee motivation, whereas a challenging or a versatile job has a positive effect on motivation. In the previous lectures, we studied different theories of motivation. Job characteristic model as extension to those theories. Those theories were related to inner feelings, needs, motives, drives, and actions, consequences, environment, organizational structure. Job characteristic model is based on the fact, yeah, on the idea that organizational motivation can be increased if we design better jobs, versatile jobs, challenging jobs, jobs that employees love to do. This theory or model also encompasses individual variables that may function as a moderator to represent the relationship between job characteristics and outcome variable. जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल एक ऐसा टूल है या ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जॉब को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है खुद से काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। उसका डिज़ाइन ऐसे बना दिया जाता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो बोर नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से अपने आप को उस जॉब के अंदर फिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसको अच्छी लग रही होती है, उसको बोरिंग नहीं लग रही होती, वो एक जैसी रूटीन नहीं होती, वो वर्सटाइल होती है, वो चैलेंजिंग होती है। रोज़ उसको एक नया काम करने का मौका दिया जाता है, नया नया नए तरीके से अपने आप को निखारने का, अपने फैसले खुद करने का, अपने काम के तरीके खुद चूज़ करने का मौका दिया जाता है। तो इन चीज़ों की बेस पे एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि वो बेहतर काम करे, अच्छा काम करे। The JCM identifies five core job dimensions and their relationship to personal and work outcomes. Building on Herzberg motivation hygiene theory, the JCM focuses on the content of jobs rather than the context of jobs, and can be considered a way of motivating employees and increasing job satisfaction. जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल रिचर्ड हैकमैन एंड क्रेग ओल्डम ने 1980s में प्रेजेंट किया था, और हर्सबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पे फोकस करता है और कहता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तरीके से जॉब डिज़ाइन करें कि वो जॉब्स या वो जॉब्स जो सी हैं उसका कंटेंट जो सा है वो डिवाइस करे, वो लीड करे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को या उनके बिहेवियर्स को, और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करे rather than the context of job. According to the definitive version of the job characteristic model, five core job characteristics were to invoke three physiological states in the employees. These five characteristics lead
to a lot of favorable personal and work results. The organization must try to moderate the connections between the job characteristics and physiological states, and, and between the physiological states and the outcomes. ये जो 5 कोर जॉब कोर करेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर देखी जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल की, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं जॉब करेक्टरिस्टिक्स में और फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में, जो रिजल्ट करता है आउटकम्स का कि उनके बदले में क्या नतीजे निकलेंगे। इन जॉब करेक्टरिस्टिक्स को अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पहली है स्किल वैरायटी, द डिग्री टू विच द जॉब रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज so the employees can use a number of different skills and talents. आपकी जॉब ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसके करने में एम्प्लॉय को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करनी पड़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स यूज़ करने पड़ें। जब उसको ये काम करना पड़ेगा तो वो मोटिवेट होगा। अगर वो एक ही तरह का काम कर रहा है, करता जा रहा है, एक ही स्किल उसको यूज़ करना, तो वो डीमोटिवेट होगा कि मेरे बाकी जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो मेरी डोरमेंट होती जा रही हैं, वो मेरी ख़राब होती जा रही हैं, वो तो मेरी यूज़ ही नहीं हो रही इस जॉब में, तो मैं ये जॉब क्यों करूं? वो ये सोचना शुरू हो जाएगा। तो अगर जॉब ऐसे डिज़ाइन हुई है कि उसमें मुख्तलिफ स्किल्स उसको यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो वो मोटिवेट होता है। Then comes task identity. Task identity is defined as the degree to which the job requires completion of a whole and identifiable piece of work. टास्क आइडेंटिटी कहता है कि जी जब कोई एम्प्लॉय कोई काम कर रहा हो तो उसको पता हो कि वो क्या काम कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर सके उस अपने काम को दूसरों के काम से। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, वो कोई आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क नहीं है या उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। जब उसको ये लगेगा कि उसके पीस ऑफ वर्क या उसके काम की इम्पोर्टेंस है, वो आइडेंटिफाइबल है, लोग कह सकते हैं कि ये काम फॉर एग्जांपल अली ने किया है, ये काम अजमत ने किया है, ये काम फिरोज़ ने किया है, तो फिर लोगों को लगेगा, उन तीनों को लगेगा कि जी हमारा काम आइडेंटिफाइबल है, हमारे टास्क की आइडेंटिटी है, तो वो मोटिवेट होंगे, वो अच्छा काम करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज टास्क सिग्निफिकेंस. Task significance is the degree to which the job has a substantial impact on the lives or work of other people. मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट होता है, कोई असर होता है दूसरों की ज़िंदगी पे या दूसरों के काम पे। आपको लगता है कि आप जो काम करेंगे उससे किसी की ज़िंदगी पे, किसी के काम पे ये असर होगा, तो आपको लगता है कि आपके काम की कोई सिग्निफिकेंस है, कोई इम्पोर्टेंस है, वो काम अहमियत रखता है। अगर आपका काम अहमियत नहीं रखता होगा, आपको लगता है कि आपका काम अहमियत नहीं रखता, तो आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका काम सिग्निफिकेंस रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, वो किसी के ऊपर असर अंदाज हो रहा है पॉजिटिवली, वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो फिर आप मोटिवेट होते हैं वो काम करने में, वो जॉब करने में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो सी है जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की, ऑटोनॉमी, वो ये कहती है कि जॉब कितनी फ्रीडम, कितने इंडिपेंडेंस, कितनी ऑटोनॉमी देता है एक इंडिविजुअल को कि वो जो काम कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, मतलब वो खुद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है और कब करना है। अगर उसको वो ये ऑटोनॉमी जॉब दे रही है तो वो मोटिवेट होगा। अगर उसको जॉब ये ऑटोनॉमी नहीं देती या उस तरह से नहीं देती जिस तरह से वो चाहता है तो वो शायद मोटिवेट ना हो। तो autonomy is a very important characteristic of job characteristic model, uh, which provide substantial freedom, independence, and discretion to the individual in scheduling the work and determining the procedures to be used in carrying it out. Then comes the last, feedback, the degree to which carrying out the work activities required by the job results in the individuals obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her performance. For the performance of the employees, it is important that they are informed of the effectiveness of their recent performances. Feedback can also have a positive effect on their motivation. When managers tell employees they're doing a good job, they will motivate them to continue in the same way. When they hear that their actions did not meet the requirements, they will respond accordingly and try to improve their performance. तो फीडबैक एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब करेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉयज़ के लिए। उनको जब उनका मैनेजर या उनका ऑनर ये बताए कि आपने जो काम किया है उसका ये रिज़ल्ट निकला है या उससे ये इफ़ेक्ट हुआ है, तो उनको लगेगा कि जी उनके काम को देखा जा रहा है, उनके काम को रिस्पॉन्ड किया जाता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसको प्रेज़ करते हैं अब उनके एम्प्लॉयर्स, उनके मालिक। अगर वो बुरा काम करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपने ये काम ख़राब कर दिया है, तो वो अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे, वो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, अपना तरीक़ाकार चेंज करेंगे। हो सकता है अपने काम का मेथड चेंज करें, हो सकता है उसको मेहनत ज़्यादा करनी होती हो उस काम को करने के लिए, तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे कि जी काम तो ख़राब हो गया है, अब इसको ठीक करना है, तो मैं उसके मुताबिक मेहनत ज़्यादा करूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट पुट करूँ। और अगर काम ठीक भी हो गया है तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि जी मैंने ठीक काम किया, मेरे एम्प्लॉयर ने या मेरे मालिक ने मुझे इस बात का बताया कि जी मेरा काम ठीक है, तो वो फिर और मोटिवेट होगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े हैं ये लीड करते हैं 3 तरह की फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को, और वो 3 तरह की फिजियोलॉजिकल स्टेट्स लीड करती हैं पर्सनल एंड वर्क आउटकम को। वो कौन सी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं? पहली है experienced meaningfulness. The experienced meaningfulness of the work is the degree to which the employee experiences the work to be inherent and meaningful, something that adds value to the experience. Meaningfulness is characterized by three of the job characteristics discussed above, that is skill variation या skill variety, task identity and task importance या significance। ये 3 जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी इस स्टेट एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क स्टेट को करेक्टराइज्ड कर रही होती हैं, इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। कि अगर स्किल वैरायटी है, अगर टास्क आइडेंटिटी है, अगर टास्क सिग्निफिकेंस है, तो वो आपको एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क आपको बता रहा होता है कि आपके वर्क का मीनिंग है, मतलब है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। आप एक्सपीरियंस करते हैं
कि जी आपका काम तो अच्छा है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा है, आप जो कर रहे हैं उसका कोई मायने है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप अपने आप के लिए भी उसका कोई मायने है, आपके लिए भी वो काम इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आप मुख्तलिफ स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा है साबित हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है, वो एक इम्पोर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द सेकंड critical physiological state is experience responsibility for outcomes of the work. This is related to autonomy. The experienced feeling of responsibility is formed by the amount of autonomy the job offers and demands. कि आपको कितनी autonomy आपकी जॉब दे रही है, वो कितनी फ्रीडम आपको दे रही है काम करने के लिए, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि जी मैंने ये काम करना है, ये मेरी अपनी डिस्क्रिशन पे है, मेरी ऑटोनॉमी है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, कैसे मुकम्मल करूँगा, कितने टाइम में मुकम्मल करना है। तो जब आपको ये महसूस होने लगेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे कि आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आउटकम के। अगर आप ये काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अगर आप ठीक तरीके से करेंगे उसको प्रेज मिलेगी तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये स्टेट भी मोटिवेशन को लीड करती है। then the third state is knowledge of result. Knowledge of result is formed by feedback. It indicates the degree to which the task holder is provided with direct and clear information on the effectiveness of his or her performance. वो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक या डायमेंशन या कोर जॉब डायमेंशन इस फिजियोलॉजिकल स्टेट को ड्राइव कर रही होती है कि आपको नॉलेज ऑफ रिजल्ट है, आपको रिजल्ट का इल्म है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट निकलेगा, और वो रिजल्ट आपके एम्प्लॉयज़ को पता हो, एम्प्लॉयर को पता होगा, आपके ऑनर को पता होगा, आपकी ये वर्क एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर आप मोटिवेट होंगे हाई परफॉर्मेंस के, हाई मोटिवेशन के, हाई सेटिस्फेक्शन के। तो अगर सम अप किया जाए तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, वो 3 तरह की फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को ड्राइव करती हैं या लीड करती हैं उसकी तरफ, और वो 3 स्टेट्स एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का बायस बनती हैं, उसकी हाई परफॉर्मेंस का बायस बनती हैं, उसके वर्क सेटिस्फेक्शन का बायस बनती हैं, उसकी लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर का बायस बनती हैं, वो जॉब छोड़ के नहीं जाते, वो छुट्टियों काम करते हैं, वो अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, वो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, वो इंटरनली मोटिवेट हो जाते हैं कि उनका काम और बेहतर हो, और तरीके से और अच्छे तरीके से काम करें, मेहनत करें, दिल लगाएं। तो ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें अगर आपने अच्छे तरीके से जॉब डायमेंशंस डिफाइन करती हैं, उनको बना लिया है, तो वो करने से एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।